السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اندھیرے چراغ بائی سلوہ جبار پارٹ 4۔ ابھی وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتی یہی سوچ رہی تھی جب دروازے کھلنے کی آواز آئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ نازنین نے سر اٹھا کر اندر آنے والے کو دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بے یقین سی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی موجودگی کا یقین نہ کر پا رہی ہو۔ نازنین! اس کے پکارنے پر نازنین کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ شخص واقعی اس کے سامنے موجود تھا، جس کی آواز سننے کو پچھلے کئی سال سے ترس رہی تھی۔ ہاں، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے جینا سکھایا تھا، زندگی کی ایک نئی نوید دی تھی، خوش رہنا اور مسکرانا سکھایا تھا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ آہیان! اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو آہیان کے چہرے پہ مسکراہٹ نے جھپ دکھلائی، اداس مسکراہٹ۔ ابھی تک نام یاد رکھا ہوا ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ بھی لحاف ہٹاتی بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ پھر فوراً ہی اپنے حلیے کا خیال آیا تو بیڈ پہ پڑی چادر اپنے گرد اچھے سے لپیٹی اور بالوں کو جوڑے میں مکید کر کے آہیان کو دیکھا، جو اس دوران نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ آپ کی اصل جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ آپ وہاں رہیں جو آپ کی اصل جگہ ہے۔ اس نے سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اچانک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہ بھائی آپ کو یہاں لائے ہیں کیا؟ وہ خود کہاں ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی اور آہیان یہی سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ میں وہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں، پر سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ شاہ کچھ دیر میں آ جائے گا۔ آپ کو یہاں پر لایا گیا ہے اور یہ سب جو بھی ہو رہا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ نہایت پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ ناز مزید الجھ گئی تھی۔ میں ابھی بھی نہیں سمجھی۔ آپ بہت ناسمجھ ہے، جانتا ہوں میں، اسی لیے آپ کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ آپ میں تھوڑی سی سمجھ پیدا ہو جائے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو چند سال اکیلے چھوڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ آپ مزید ناسمجھ ہو جائیں گی۔ اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا، بالکل سادہ، لیکن ناز کو لگا جیسے وہ اس پہ طنز کر رہا ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ احیان نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے نزدیک اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، یعنی وہ خود کو بے قصور سمجھ رہی تھی۔ آپ نے پتا ہے کیا کیا ہے؟ آپ نے میرا دل توڑا ہے، آپ نے میرے جذبات کی توہین کی ہے، آپ نے میرے ساتھ سب سے برا کیا ہے، سب سے برا۔ اگر مجھے ابھی پتا نہ چلتا تو آپ نے تو شادی کر لینی تھی۔ آپ کو تو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کوئی آپ کا برسوں سے انتظار کر رہا ہے، آپ کے ایک جواب کا، آپ کی ایک ہاں کا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکوے تو نازنین کو بھی تھے، بہت تھے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا، خاندان والے جمع ہو چکے تھے، سب تیاریاں مکمل تھی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پلیز شاہ بھائی کو بلا دیں، مجھے واپس جانا ہے، آج میری شادی ہے، مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد پریشان تھی، گھڑی پر نظر ڈالی جو دوپہر کے 3 بجا رہی تھی، جبکہ وہ صبح تقریباً 7 بجے گھر سے نکلے تھے۔ صبح کہاں صحیح کہاں، دیر تو صحیح کہا، دیر تو واقعی بہت ہو گئی ہے، آپ کی شادی ہے اور میری بھی۔ وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ناز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی شادی کر رہا تھا؟ ابھی تو اسے ڈھیروں شکایتیں کر رہا تھا، تو پھر یہ شادی؟ لیکن پھر اس نے خود ہی اپنی سوچ کی تصحیح کی، وہ بھی تو شادی کرنے جا رہی تھی۔ جب وہ اسے بھلا چکی تھی تو پھر وہ کیوں کر اس کا انتظار کرتا رہتا؟ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے دل میں چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کی بھی شادی ہے؟ اس نے کچھ بجھے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، میری بھی شادی ہے اور آپ کی بھی، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ صاف صاف کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ناز کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مطلب یہ کہ آپ کی اور میری شادی ہونے والی ہے۔ دوسری طرف گل مجھے صاف صاف بتاؤ، تم کیا کر کے آئی ہو؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی پھر سے وہی سوال دہرا گئی تھی۔ میری پیاری حور، ام کیوں کچھ کرے گا؟ ام نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اب وہ خود ان حویلی والوں سے حساب لے گا۔ تم ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟
اس نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لالی آج شاید سمجھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ یہ ڈرامے تم اس کے سامنے کرو جو تمہیں نہیں جانتا ہو۔ میں تمہاری بہن ہوں گل، اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، لہٰذا میرے ساتھ ڈرامے بازی مت کرو۔ کل جذباتی ہو کر وہ گل کو کل جذباتی ہو کر وہ گل کو سب کچھ بتا تو بیٹھی تھی، لیکن یہ بات وہ بھول گئی تھی کہ گل اس سے بھی کہیں زیادہ جذباتی اور جلد باز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گل اتنی آسانی سے اس بات کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ کل رات وہ پورا وقت جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی تھی، اور صبح ہوتے ہی دوست کے گھر کا کہہ کر نکل گئی تھی۔ واپسی پر وہ بالکل پرسکون اور کافی حد تک خوش بھی تھی۔ جس نے لالی کو مشکوک کیا تھا، تبھی وہ اس وقت کچن میں کھڑی اسے تفتیش کر رہی تھی۔ لالی، میری بات سنو، تم کو بالکل بھی ڈرنے، گھبرانے یا کسی کا بھی ظلم سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی تم سے بدتمیزی کرے گا اس کا منہ توڑ دو۔ بھی ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دے کر آیا ہے۔ یاد رکھیں گے ساری زندگی کس سے پنگا لیا تھا۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پہ چڑھاتے گردن اکڑا کے کہا۔ یا اللہ گل، تم کیا کر کے آئی ہو؟ کیا کہا تم نے انہیں؟ ہاں بولو بھی۔ لالی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی تھی۔ اوہو یار، چل کیا کرو، تم اتنا ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ وہ ہنوز پرسکون تھی۔ تم جانتی بھی ہو وہ لوگ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ پاگل ہو تم؟ مجھے بتاؤ گل، تم نے کیا ہے؟ کیا کر کے آئی ہو تم؟ وہ چلا پڑی۔ کچھ بھی نہیں، اما ویلی گیا، وہاں جا کے اس نک چڑی چڑیل کو 2 تھپڑ لگایا، اس کے منہ پہ یہ ڈھیر سارا پیسہ مارا، خانم بی بی کو غیرت دلائی جو یقیناً آئی تو نہیں ہوگی، پر پھر بھی ہمارا تو فرض تھا نا۔ بس اوپر سے بڑے خان آئے، پھر وہ کو تھپڑ مارنے لگے تھے۔ لالی تو بس ششدر سی اس کا کارنامہ سن رہی تھی۔ گل، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ اسے لگا کہ ابھی گل ہنس کر کہے گی کہ ہاں وہ مذاق ہی کر رہی ہے، لیکن اس کے خاموش رہنے پہ لالی تو غش کھانے کے قریب تھی۔ تم جانتی بھی ہو بے وقوف لڑکی کہ کیا کر کے آئی ہو تم؟ پتا ہے کون لوگ ہیں وہ؟ تمہاری اس فضول اور بچکانہ حرکت پہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ کس سے پوچھ کے گئی تھی وہاں؟ بولو، جواب دو۔ اوپر سے تھپڑ بھی کھا کر آ گئی۔ لالی کے چلانے پہ گل نے اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ شش، آہستہ بولو، مورے جاگ جائے گی۔ اور تمہاری طرح نہیں ہے جو تھپڑ کھا کے آ جائے۔ کوئی ہاتھ تو لگاتا۔ اس کو نانی یاد دلا دیتا۔ وہ تو خان صاحب نے اس بڑے خان کو روک لیا، ورنہ بھی پھر بتاتا اسے کہ گل دوپہری کیا شے ہے۔ اس نے گردن اکڑا کے کہا تو لالی خان صاحب والی بات پہ ٹھٹکی۔ کون خان صاحب؟ ان کا پوتا۔ کیا نام ہے اس کا؟ دلاور۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں؟ تمہارا گلا دباؤ یا اپنی بیوقوفی پہ اپنا ہی سر پھاڑ لوں؟ اسے گل سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے سب بتانے کی؟ فی الحال تو تم صرف اپنا ٹیوشن جاؤ، دیر نہیں ہو رہا تمہیں؟ اس نے بات بدلنے کو کہا۔ لالی نے اسے گھور کے دیکھا تو مسکرا پڑی۔ لالی، اپنا بدلہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ بدلہ لینے کا حق تو اللہ نے بھی دیا ہے، پھر کیوں ان لوگوں سے ڈرے؟ تم بیکار میں ڈرتی ہو، کچھ نہیں ہوا بھی تو ہم سنبھال لے گا۔ لالی نے گہرا سانس کھینچا۔ اچھا بتاؤ، آج جانا نہیں ہے کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج دیر سے جاؤں گی، ایک نیا ٹیوشن ملا ہے، لیکن ان سے رات کو بات کرنے جانا ہے۔ لالی بھی جانتی تھی کہ اس سے بحث بیکار ہے، اور سچ تو یہ تھا کہ گل کی اس حرکت سے لالی کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی، بے شک اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ بس اسے ڈر تھا تو یہ کہ کہیں حویلی والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن دلاور کا ذکر سن کے وہ مزید پرسکون ہو گئی تھی۔ بات سنو گل، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو حور۔ دلاور صاحب اچھے آدمی ہیں، تم ان پر اعتبار کر سکتی ہو۔ پتہ نہیں اس نے کس خیال کے تحت کہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ گل نے اسے چونک کے دیکھا۔ کیا وہ دلاور کو جانتی تھی؟ پھر خود ہی دل میں سوچ کر پرسکون ہو گئی کہ دلاور صاحب اچھے دل کے مالک ہے، کیا پتہ کبھی لالی کی بھی مدد کی ہو۔ ہاں اچھا آدمی تو ہے، پر بہت خر دماغ ہے۔ اسے دلاور سے ہوئی گفتگو یاد آئی تو بے اختیار کہہ بیٹھی، پھر لالی کی آنکھیں دکھانے پہ فوراً سیدھی ہوئی۔ تو مذاق کر رہا تھا۔ بہرحال یہ جو حرکت تم نے کی ہے، اس کے بعد تمہارا باہر جانا بند۔ کہیں بھی جانا ہوگا تو میرے یا دلیر دمیر کے ساتھ جاؤ گی، آئی سمجھ؟ خور، یہ مت کرو، خدا را اتنا بڑا ظلم پہ مت کرو۔ اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ زیادہ ڈرامے مت کرو اور جلدی چائے پیو اور جلدی چائے بناؤ، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ وہ بغیر اس کے سنے حکم صادر کرتی کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے سے گل سر جھٹک کر رہ گئی۔
दूसरी तरफ वो हल्के से शीशे और मोतियों के काम वाला सुर्ख जोड़ा पहने, सर पर रेशमी सुर्ख दुपट्टा और कानों में छोटी छोटी बालियां पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अजीब सी नजरों से खुद को देख रही थी। मेकअप से आ रही शफाफ चेहरे पे सरतासुरात सजाए वो कहीं से भी दुल्हन मालूम नहीं हो रही थी। उसने आईने में अपना अक्स देखा तो उदासी से मुस्कुरा दी। जिंदगी भी अजीब शय है, हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। आज सुबह तक वो अपने दिल पे पत्थर रखकर खुद ही अपने आप पर खुशियों के दरवाजे बंद करने जा रही थी, और अब जब अचानक किस्मत ने उसकी खुशियां उसकी झोली में डाल दी थी तो दिल फिर भी वीरान था। बरसों से जिस शख्स के ख्वाब आंखों में सजाए थे, आज वो हकीकत बन के उसके सामने खड़ा था, लेकिन जाने क्यों इस हकीकत पे यकीन करने को दिल नहीं कर रहा था। वो अजीब सी कश्मकश का शिकार थी। ये सच था कि उसने हमेशा से अहयान को ही अपने हमसफर के तौर पर चाहा था, लेकिन जो तवील सफर वो इन चंद सालों में तय कर चुकी थी, अब उसे किसी हमसफर की जरूरत नहीं थी। उसने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह अहयान को रोक ले, लेकिन वो भी अपनी जिद का पक्का था। उसने एक ही बात की रट लगाई थी कि नाज अपने साथ जुल्म कर रही है और वो ऐसा करने नहीं देगा। ये बात सच भी थी, लेकिन जब इंसान खुद ही अपना बुरा चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। वो अपनी ही सोचों में उलझी बैठी थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ में उसने सर उठाकर देखा तो अहियान सफ़ेद शलवार कमीज पे ब्लैक वॉस्कट पहने कमर पे हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। आज वो बहुत जाज़िबी नजर लग रहा था। वह गुजरने के साथ मजीद निखर गया था। वो कहीं से भी पहले वाला शौक व चंचल अहयान नहीं लग रहा था, बल्कि चेहरे पे संजीदगी सजाए बावकार और मजबूत शख्सियत वाला ये तो कोई और ही अहयान था। नाज उसे एक नज़र देख के नज़रों का रुख मोड़ गई थी। काजी साहब आ रहे हैं, इसके कोई जवाब न देने पे अहयान 2 कदम चलकर मजीद करीब आया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती, उसने दो टोक अंदाज में कहा। मैं बोलूंगा तो आपको सुनना तो पड़ेगा। आप बोलते रहें, मेरा सुनना लाजमी तो नहीं। वो आपकी मर्जी है, सुने या ना सुने, लेकिन माननी तो आपको मेरी ही पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए रिटाई का भरपूर मुजाहरा किया। नाज़नीन चल के रह गई। मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती, उसने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। फिर किससे करना चाहती हो निकाह? उस 70 साला बूढ़े से जो 100 बच्चों का बाप, रिश्वतखोर और सारे जमाने का घटिया और जलील आदमी है। अयान को तब चढ़ी। वो कब से उसे समझा रहा था, पता नहीं नाज क्यों हुजूर की जिद कर रही थी। मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ, तो फिर मेरी भी मर्जी मैं जो भी करूँ। शामिर भाई को बुला लें। शामिर भाई को बुलाए। उसकी आखिरी उम्मीद अब शामिर ही था। वो भी आ जाएगा निकाह के बाद, फिक्र मत करे, उसकी रजामंदी से ही ये निकाह हो रहा है। यकीन ना आए तो निकाहनामा देख लीजिएगा, गवाहान में वो भी मौजूद है। मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? ना माने? मैंने कब कहा कि माने? उसने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। आपको पता है आप कितने बुरे हैं, उसने चिढ़कर कहा। आपको आपको पता है? उसने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, आपको नहीं पता। तो बेहतर है आप मुझे बुरा बनने पे मजबूर ना करें। आराम से कह रहा हूँ तो मान जाए। जबरदस्ती करने में भी मुझे कोई आर महसूस नहीं होगी। फैसला आपका है, लेकिन मेरे ही हक में होना चाहिए। उसने दो टोक अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से नासर हाथों में थाम कर बैठ गई। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने जो भी कहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था, सिवाय उनके आखिरी जुमले के। क्या उसे ये निकाह कबूल था? शायद हाँ, शायद नहीं। दिमाग कह रहा था कि इनकार कर दे, जबकि दिल चीख चीख कर दुहाइयां दे रहा था कि इकरार कर ले। दिल और दिमाग के बीच छिड़ी इस जंग के दौरान उसे क्या कुछ याद नहीं आ रहा था। गुजरा वक्त, गुजरे साल, उसकी जिंदगी के बेहतरीन और बदतरीन साल। बात सुने, आप कौन है? मैं डॉक्टर आयान हूँ। उसकी आंखों के आगे एक मंजर नजर आ रहा था और एक जा रहा था। आप क्या काम करते हैं? मैं लोगों की मसीहाई करता हूँ। तो शामिर भाई से क्या ताल्लुक है आपका? मैं उसकी भी मसीहाई कर दिया करता हूँ। गुजरा वक्त उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और उसे पता भी न चला कब उसकी जबान से ये लफ्ज अदा हो गए। आखिर दिमाग हार गया और दिल जीत गया। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने एक बार फिर पूछा। मुझसे दोस्ती करेंगी? क्यों? मैं क्यों करूँ आपसे दोस्ती? आपका कोई दोस्त जो नहीं है, मुझे बना ले अपना दोस्त। आप मीरजा के दोस्त है तो मेरे नहीं हो सकते? कबूल है। उसने एक बार फिर दिल की आवाज़ पे लब्बैक कहा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने आखिरी बार पूछा। आप मुझे छोड़ के जा रही है? मैं नहीं जा रही, आपकी मीरजा मुझे भेज रहे हैं। प्लीज़ मुझे रोक ले। कैसे रोकूं आपको? आप पूरन की शहजादी है, शहजादी अपने महलों में ही अच्छी लगती है। चली जाए इससे पहले कि देर हो जाए। मैं नहीं जाना चाहती।
मैं आपको लेने आऊँगा एक दिन, जब आपकी हिफाजत करने के लायक हो जाऊँगा। ये मेरा वादा है, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। कबूल है। एक और आंसू उसकी आँख से निकलकर बेमोल हो गया। वो अहयान को कबूल कर चुकी थी, उसका इंतज़ार इख्तिताम को पहुंचा था। उसको तवील सफ़र के बाद मंजिल मिल गई थी। अहयान ने अपना वादा पूरा किया था, फिर वो कैसे अपनी बात से मुकर जाती? नहीं, एक मौका तो वो खुद को दे सकती थी, अहयान को दे सकती थी। किस्मत उन्हें एक बार फिर अलग कर चुकी थी, लेकिन आज किस्मत ने ही उन्हें मिला दिया था। वो बेआवाज़ रो रही थी और कोई दरवाजे में खड़ा उसे उदासी से देख रहा था। दूसरी तरफ समंदर की लहरों ने दूर तक फैली खामोशी में अजीब सा शोर मचा रखा था। दूर नजर आते डूबते सूरज पे नजरें गाड़े वो रेत पे बैठा कुछ सोच रहा था। उसे डूबता सूरज बहुत पसंद था, खास तौर पे तब जब वो समंदर में डूबता नजर आता। जितना मिर्जा को समंदर से खौफ आता था, उतना ही पाशा को समंदर पसंद था। आखिर को उसी समंदर ने उसकी और मिर्जा दोनों की जिंदगी बदली थी। वो अक्सर ही साहिल समंदर पे घुटनों पे घंटों बेवजह बैठा रहता। कोई सुनता तो शायद इस बात पे यकीन न करता कि वो इतनी मसरूफियत के बावजूद भी समंदर के किनारे घंटों बेवजह बैठा रहता था। उसने ब्लैक पैंट पे ब्लैक शर्ट और ऊपर लाइट ब्राउन ट्रेंच कोट पहना था, जबकि मखसूस अंदाज में ब्लैक बाउलर हेड भी पहन रखी थी। मगर चेहरा नहीं छुपाया था, क्योंकि वो सामने नजर आते सूरज को डूबते देख रहा था, जो लाल रंग के थाल की तरह लग रहा था। उसकी महबत को फोन की घंटी ने तोड़ा। उसने बगैर देखे कॉल उठाकर फोन कान से लगाया। वो जानता था कि किसकी कॉल आई होगी। इतना सही थी। नाज़नीन अली खान का निकाह डॉक्टर अहयान से हो चुका है और इसके पीछे मिर्जा का हाथ है। फोन से आती आवाज़ सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो खुद कहाँ है? लोकेशन ट्रेस करने पे इस्लामाबाद आ रहा है। ठीक है, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और फिर सामने देखने लगा, जहाँ सूरज पूरी तरह समंदर में गुम हो चुका था और हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। बेहतरीन दोस्त बेहतरीन दुश्मन भी साबित होते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मुझे कभी धोखा मत देना मिर्जा, वरना तुम्हें मारते हुए मुझे अफसोस तो बहुत होगा, लेकिन निदामत जरा भी नहीं। वो खुद से सरगोशी करता उठ खड़ा हुआ और बॉलर हेड से चेहरा छुपाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ नाज, उसके पुकारने पे नाज़नीन ने सर उठाकर देखा। मैं खड़े शाह दरवाजे में खड़े शाहमीर को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। भाई! वो भाग कर उसके पास आया, उसके सीने से लगी आंसू बहाने लगी। शाहमीर की आंखें भी नम हो गई, पर वो कमाल महारत से आंखों में उतरती नमी छुपा गया। पीछे से आते अहयान ने ये मंजर देखा तो वो 2 कदम पीछे होकर दीवार की ओट में हो गया। आप कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ छोड़कर? मैंने आपको कहा था मैं वो निकाह अपनी मर्जी से कर रही थी, तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? उसकी गलोगीर आवाज़ में कहने पर जहाँ अयान ने अपनी मुट्ठियाँ भीजी थी, वहीं शामिर उसे कंधों से पकड़े बेड की तरफ लाया था। अच्छा, बस करो, मैं आ गया हूँ ना। उसने उससे अपने होने का एहसास दिलाया तो नाज ने शिकवा नजरों से देखा। देर कर दी आपने आते आते भाई, बाज़ औक़ात देर कर देना अच्छा होता है। उसकी बात पे खामोश हो गई। देखो नाज, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बेशक तुम बालिग और समझदार हो, लेकिन मेरा भी तो तुम पे कुछ हक है ना। मैं भी तो तुम्हारे लिए कोई फैसला कर सकता हूँ ना। और यकीन करो कि मैंने हवेली वालों से बेहतर फैसला किया है। अहयान बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी, ये बात तो तुम भी जानती हो। क्यों, ऐसा ही है ना? वो उसे सीने से लगाए नरमी से पूछ रहा था। वो उससे सिर्फ 3 साल बड़ा होने के बावजूद भी इस वक्त कई साल बड़ा और समझदार लग रहा था। उसके अंदाज और लहजे से शफकत छलक रही थी। नाज़नीन को अपना आप पुरसुकून होता महसूस हुआ। उसके भाई का साया उसके सर पे मौजूद था, और उसे क्या चाहिए था? वो सही ही तो कह रहा था। शायद अहयान इस दुनिया का वाहिद शख्स था जिसके साथ वो खुश रह सकती थी, और किसी के साथ रह भी लेती तो वो मजबूरी ही होती। उसने सर उठाकर शाहमीर को देखा, जो उसे ही देखता मुस्कुरा रहा था। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ, वो कुछ कहते कहते रुकी। क्या बात है, बोले। उसने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ, अभी उसकी खबर लूंगा। उसका लहजा फौरन ही सख्त हुआ। नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब मैं उनके साथ रहूंगी। उसने हिचकिचाते हुए फिर से पूछा। हाँ, अब ये तुम्हारा शौहर है तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। उसने मायूस लहजा बनाकर कहा तो नाज हंस पड़ी। ओहो, ये तो मसला हो गया। उसने मुंह बनाकर कहा तो अहयान से मजीद बर्दाश्त न हुआ। वो दीवार की ओट से निकलकर कमरे में दाखिल हो गया। क्यों, मैं जल्लाद हूँ कोई, या कोई ड्रैकोला हूँ, या शक्ल से
किडनियाँ निकाल के बेचने वाला डॉक्टर लगता हूँ जो आपको इतना मसला हो रहा है। उसने सख्त तेवरों से उसे देखा तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर शाहमीर को देखने लगी। शाहमीर ने अहयान को सख्त घूरी से नवाजा, लेकिन वो उसकी घूरियों का असर लिए बगैर नाज़नीन को देख रहा था। क्या शिकायतें लगाने की कोशिश की जा रही थी? और हाँ, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि मैं आपका शौहर हूँ और साथ ही साथ मेरी खिदमत भी करनी पड़ेगी और हर बात भी माननी पड़ेगी। उसने गर्दन अकड़ा के कहा तो शाहमीर की बर्दाश्त खत्म हुई। क्या कहा? जरा फिर से तो कहना, उसने सख्त लहजे में पूछा तो अहयान गड़बड़ा गया। क्या हो गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो दिल पे ही ले लेते हो यार। बेहतर है मजाक ही हो। इसके बावर करवाने पे अहयान ने ठंडा सांस खारिज किया। वो फिर से बिल्कुल पहले वाला अहयान लग रहा था, वही शौक, वो चंचल अहयान। भाई आप अब यहीं रहेंगे ना? नाज़नीन की आवाज़ में दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जहां अहयान ने शाहमीर को जताती नज़रों से देखा, वहीं शाहमीर भी थोड़ा उदास हुआ था नजर आया। नहीं नाज, ना मैं यहाँ रहूंगा ना तुम। नाज़नीन ने सोचा कि उसे समझाने की कोशिश करे, लेकिन फिर अयान को देखकर ख्याल आया कि अभी सही वक्त नहीं है। घर की तैयारी कब पकड़ोगे मियाँ? अयान के पूछने पे शामिर ने उसे फिर से घूरा। ये मेरा ही घर है, अगर चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, डंगर डॉक्टर। उसकी बात पे नाज ने अपनी हंसी छुपाई तो अयान जल कर रह गया। भाई मैं आपके साथ रहूंगी। उसे समझ न आई कि वो पूछ रही थी या बता रही थी। अहयान ने मुंह खोले उस अजीब व गरीब लड़की को देखा, जिसका अभी अभी निकाह हुआ था और वो शौहर के बजाय भाई के साथ जाने पे खुश हो रही थी। अहयान को खुद पे ही तरस आया। हाँ हाँ, आप बहन भाई आराम से एक दूसरे के साथ रहना, और मेरा क्या है, मैं तो सड़क पे पड़े कूड़ेदान में भी रह लूंगा। हाँ वैसे भी वही आपका असली घर है, आपको उठाया भी तो कूड़ेदान से ही था। वो बगैर सोचे समझे कह गई, फिर शाहमीर के हंसने पर ज़बान दांतों तले दबाई। अहयान के सामने तो उसकी ज़बान वैसे ही फराटे भरती थी, ऊपर से अब वो मिला भी इतने अरसे बाद था, कसर तो पूरी करनी थी। अच्छा, मुझे कूड़ेदान से उठाया है? और आपको तो जैसे परस्तान से परियां छोड़ के गई थी ना। शामिर को उनके बच्चों की तरह लड़ने पे हैरत हुई। अभी वो कुछ कहने ही वाला था जब फोन पे आती कॉल सुनने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। कॉल सुनकर वापस आया तो नाज और अहयान किसी बात पे बहस कर रहे थे। वो बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ा। तुम जरा बाहर जाओ, उसने तहमुकाना लहजे में अहयान को कहा तो मुंह बनाता बाहर निकल गया। नाज, मुझे ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। मैं चाहता तो यही था कि तुम्हारे साथ ही शहर भी जाऊं, लेकिन मजबूरी है। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें और अहयान को अभी निकलना है। उसके इतना कहने की देर थी और आंसू नाज की आंखों से टप टप गिरने लगे। शाहमीर अपनी जगह शर्मिंदा सा हो गया। आप फिर से मुझे छोड़ के जा रहे हैं भाई? उसने गलुगीर लहजे में कहा तो शामिर का दिल कट के रह गया। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे सीने से लगाकर सर पे हाथ रखा। नहीं गुड़िया, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं कभी नहीं जाऊंगा। बस कुछ ज़रूरी काम है, और फिर तुम्हारी हिफाजत भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। और यहाँ तुम महफूज नहीं हो। तुम अभी अहयान के साथ चली जाओ, मैं 2-3 दिन में वहीं आ जाऊंगा, मेरा वादा रहा। उसकी यकीन दहानी कराने पे नाज़नीन राज़ी हो गई। वो जानती थी कि शामिर अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता, तभी वो पुरसुकून हो गई थी। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ, फिर 2-3 दिन तक लाहौर में मुलाकात होगी। नाज उसकी बात पे मुंह बनाकर पीछे हुई। अब नाराज़ नहीं होना। अच्छा, तुम नाराज़ होगी तो फिर मेरे तो काम ही खराब हो जाएंगे। अब मैं जाऊँ, इजाज़त है? उसने इजाज़त से पूछा तो नाज मुस्कुरा पड़ी। जी भाई। उसकी तरफ से पुरसुकून होकर वो उसके सर पे हाथ रखता बाहर निकला। अहयान वहीं खड़ा था, उसके पास से गुजरते हुए कुछ लम्हे के लिए रुका। मेरे घर मत जाना, वहाँ खतरा है। फिर वैसे ही चेहरे पे सरता सुराग सजाए घर से बाहर निकल गया। पीछे से अहयान अफसोस से सर हिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब दूसरी तरफ आज फिर उसे यह तंगे से वापसी पर बहुत देर हो गई थी। हवेली वाली नौकरी छोड़ने के बाद अब उसे जल्द से जल्द किसी नौकरी की ज़रूरत थी। तभी अपनी एक दोस्त के हवाले से शाम को वो एक घर गई थी जहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत थी। उसके शहर से पढ़कर आने का सुनकर वो लोग फ़ौरन मान गए थे, और तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर रात के वक्त इतनी दूर पढ़ाने जाना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन था। दिन का वक्त उन लोगों के लिए मुनासिब नहीं था, और रात का गुलालई के लिए। बुलंदोबाला पहाड़ों से घिरे सुनसान रास्ते पे चलते वो अपनी सोचों में गुम यही सोच रही थी कि अब क्या करना है। नौकरी की अशद ज़रूरत थी, मगर रात के इस पहर अकेला आना जाना उसके लिए मुमकिन न था। रास्ता सुनसान था, बस वक्फे वक्फे से 1-2 गाड़ियां गुजर रही थी, जिन्हें देख के गुलालई का दिल वैसे ही डूब जाता। ठंडी यह हवा
उससे टकराई तो वो झरझरी लेकर पूरी तरह अपनी काली चादर में दुबक गई। माहौल पे छाई खामोशी में फोन की बजती घंटी ने इर्तियाश पैदा किया। वो एकदम उछल पड़ी, फिर तेजी से धड़कते दिल पे हाथ रखकर फोन बैग से निकाला तो गुल की कॉल थी, जो उसने फौरन उठा ली। हाँ लाली, कहाँ हो तुम? उसके लहजे में बेजारी शामिल थी। पता तो है तुम्हें, इतना लंबा रास्ता है, ऊपर से रात के इस वक्त कोई ढंग की सवारी भी नहीं मिलती। वो उससे ज्यादा बेजार थी। तेजी से कदम कदम उठाती वो इर्द गिर्द भी देखते जा रही थी। ट्यूशन का कुछ बना? वो लोग रात को आने का कह रहे हैं, और ऊपर से मुझे वहां जाकर पता चला कि उन लोगों की शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। मैंने इनकार कर दिया। उसकी बात पे दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हेलो। हाँ। अच्छा किया तुमने। खैर तुम जरा जल्दी आ जाओ, मोरे बहुत परेशान है। क्यों, अब क्या हो गया? उसने गहरी सांस खारिज की। हमारे वालिद साहब पिछले 1 हफ्ते से लापता है, उसने याद दहानी करानी चाहिए। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो अब रोज का मामूल बन गया था। समंदर खान घर आता ताकि कोई न कोई चीज लेके जाकर बेच सके, और फिर हफ्तों हफ्तों गायब रहता। हाँ लेकिन वो गुलाब खान है ना। उसकी बेगम बता रही थी कि उसने यह तंगे वाली साइड पे ही वालिद साहब को देखा था। अजीब सी हालत में घूम रहे थे, शायद नशा वशा किया था। अब जरा जल्दी आ जाओ और मोरे को चुप करवाओ, क्योंकि मेरे बस की तो बात नहीं। गुल को शदीद गुस्सा था समंदर खान पर, और उससे ज्यादा अपनी मोरे पर, जो ऐसे बेहिस आदमी के लिए आंसू बहा रही थी। अच्छा, आ रही हूँ मैं, उसने कहकर कॉल काट दी। वो सड़क के वसत में खड़ी थी। यहाँ से 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता जरा ज्यादा लंबा था और दूसरा घर ज्यादा जल्दी पहुंचाता था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल सुनसान था। ये कच्चा सा रास्ता था, लेकिन यहाँ से गाड़ी के गुजरने की जगह भी थी। लाली कश्मकश में खड़ी थी कि कौन से रास्ते से जाए, फिर कुछ सोच के कच्चे रास्ते पे चल पड़ी। वैसे भी अब डरने का फायदा तो था नहीं, फिलहाल उसे बस जल्दी घर पहुंचना था। वो तेज तेज कदम उठाती चलने लगी, इस बात से अनजान कि ये रास्ते असल में उसकी किस्मत का ला, उसकी किस्मत का लाया गया नया मोड़ था। अगर वो ये बात जानती होती तो शायद कभी भी उस रास्ते पे न चलती। दूसरी तरफ जो जगह तुमने बताई थी वहां कोई नहीं था। शायद उन्हें पता चल गया था यह तंगे से निकल गया हूं मैं, और इन लोगों की कोई खबर है। वो एक हाथ से जीप ड्राइव करता, दूसरे से फोन को कान से लगाए शाहराहे पूरन पर जीप दौड़ा रहा था। दूर तक फैली तारीकी में उसकी जीप की हेडलाइट से सड़क कुछ फासले तक वाज़ेह थी। सड़क की एक तरफ पहाड़ों के हवाले और दूसरी तरफ पहाड़ों के हेवले और दूसरी तरफ घना जंगल था, जिसके दरख्त हवा के टकराने से अजीब सा शोर मचा रहे थे, जो उसे खौफ में मुब्तला कर रहा था। वो निहायत एहतियात से जीप चला रहा था। सर, लोकेशन तो यह दंगे की ही शो हो रही है, मैं थोड़ी देर में चेक करके बताता हूँ। उसके कहने पे शामिर ने कॉल काट दी और जीप की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। जाने उसे कहाँ जाने की जल्दी थी। अभी उसने फोन डैशबोर्ड पे रखा ही था जब एक बार फिर कॉल आने लगी। हाँ सर, उन लोगों में से एक का फोन अभी अभी ऑन हुआ था। वो लोग इस वक्त छोटे से गांव बेंगालई में छुपे हुए हैं। ठीक है, उन्हें ट्रेस करके मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भेजो। उसने कॉल काटी और स्पीड मजीद बढ़ा दी। रास्ते तो वो पहले ही समझ चुका था। एक जगह पर पहुंचकर उसने जीप रोकी। यहाँ से 2 रास्ते जाते थे। वो जानता था कि दूसरा रास्ता बंगालई जल्दी पहुंचा देगा, इसलिए उसी कच्चे रास्ते पे जीप डाल दी। वो हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पे नजर जमाए बंगालई के रास्ते पे गामजन हो गया। वो मजबूती से अपनी चादर का पल्लू दबोचे तेजी से कदम उठाती दिल ही दिल में सूरतें पड़ती जा रही थी, जब सामने किसी को औंधे मुंह पड़े देखकर उसका दिल उछल के हलक में आ गया। ऐन उसके सामने कोई औंधे मुंह मिट्टी में लथपथ सड़क पे पड़ा था। उसे लगा जैसे उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो फटी फटी आंखों से सामने देखे जा रही थी। इतनी रात को अंधेरे में डूबे सुनसान रास्ते पे एक आदमी को ऐसे पड़े देख के वो बेहोश होने वाली थी। अभी वो सोच ही रही थी कि आगे भागे या पीछे, जब उसे उस आदमी के साथ ही एक मोबाइल गिरा नजर आया। गौर करने पे फौरन उसके जहन में झमाका सा हुआ। ये तो समंदर खान का मोबाइल था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था? उसे उससे अगली बात वो सोचना भी नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, ये अबू नहीं हो सकते। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाते जैसे खुद को यकीन दिलाया था, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये और कोई नहीं बल्कि समंदर खान ही है। आखिर उसने खुद में हिम्मत पैदा की और बेजान होती टांगों से तकरीबन घसीटते हुए उस आदमी तक पहुंची। घुटनों के बल बैठ के कांपते हाथों से अपना पूरा जोर लगा के उसने अपनी
उसे अपनी तरफ किया। उसका सांस सीने में ही अटक गया। सामने पड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि समंदर खान ही था। वो भी इख्तियार चीख कर 2 कदम पीछे हुई और दिल पे हाथ रखे तेजी से सांस लेने लगी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा के समंदर खान को झंझोर डाला। अब्बू अब्बू उठे, क्या हो गया आपको? वो रोते हुए सहमी हुई आवाज में बमुश्किल कह रही थी। समंदर खान की धड़कन बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। उसने इधर उधर मदद की तलाश में नजरें दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई न था। कोई है, कोई है यहाँ? काफी देर तक वो इधर उधर मदद की तलाश में आवाजें लगाती रही, लेकिन वहां कोई भी न था। वो सर हाथों में गिराए वहीं बैठ गई। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? इस वक्त उसके दिल ने शिद्दत से दिलावर को पुकारा था। हाँ, दिलावर। इस वक्त वही उसकी मदद कर सकता था। वो सारी नाराजगी और गुस्सा भुला के दिलावर को बुलाने के लिए फोन निकालने लगी, लेकिन फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या उसे आगे जाकर मदद के लिए किसी को लाना चाहिए? लेकिन इसमें तो बहुत देर लग जाती। वो समंदर खान की हालत तो बहुत खराब लग रही थी। वहीं बैठे बैठे न जाने उसे कितनी देर हो गई थी। या अल्लाह, कहीं से दिलावर को भेज दे। अभी वो दिल में यही सोच रही थी जब पीछे से उसे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स पड़ती नजर आई। वो उछल के खड़ी हुई और मुड़ के देखा तो दूर से ही कोई जीप आ रही थी। वो बगैर सोचे समझे उस जीप के सामने भाग पड़ी। उसने दूर से काली चादर में लिपटी किसी लड़की को अपनी तरफ आते देखा तो जीप की रफ्तार जरा आहिस्ता कर दी। करीब पहुंचकर उस लड़की की शक्ल वाज़ेह हुई तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। ये तो वही लड़की थी जिससे उस दिन आबशार के पास मुलाकात हुई थी। उस चेहरे इस चेहरे को भला वो कैसे भूल सकता था? यही तो वो चेहरा था जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद कर दिया था। पहली बार शामिर अली खान ने किसी चेहरे को दूसरी बार देखने की ख्वाहिश की थी। यकीनन ये चेहरा आम तो ना था कि भुलाया जा सकता, लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी और इतनी घबराई हुई क्यों थी? उसे तशवीश ने घेरा। तब तक लाली जीप के करीब पहुंच चुकी थी। उसने फौरन जीप रोकी और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। भाई, मेरे मेरे अब्बू को पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पर और कोई भी है नहीं, आप प्लीज मेरी मदद कर दे। वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। शाहमीर ने पहले उससे और फिर उसके पीछे सड़क पे पड़े आदमी को देखा और एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर सर हिलाता उस तरफ बढ़ गया। लाली भी रोते हुए उसके पीछे ही आ रही थी। उसने एक झटके से समंदर खान को बाजू में उठाया और तेजी से जीप की तरफ बढ़ा और करीब करीब लाकर लाली को पिछली सीट का दरवाजा खोलने का इशारा किया, जो उसने कांपते हाथों से फौरन खोल दिया। शाहमीर ने समंदर खान को पिछली सीट पे एहतियात से लिटाया और फिर फ्रंट सीट का दरवाजा लाली के लिए खोला। वो भी बगैर वक्त ज़ाय किए फौरन से बैठ गई। शाहमीर ने जीप अलोज के रास्ते पे डाल दी और हत्ती अमकान तेजी से जीप चलाई। 20 मिनट का रास्ता वो लोग 5 मिनट में तय कर चुके थे। इस दौरान उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई थी। लाली मुसलसल रोई जा रही थी और शामी ड्राइव करने में मसरूफ था। हॉस्पिटल की पार्किंग में जीप पार्क करके वो उसे वहीं रुकने का कहकर जीप से निकला और अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक ब्लैक मास्क निकाल कर पहना। फिर हॉस्पिटल की इमारत की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो अंदर से वार्ड बॉय को साथ लेकर बाहर आया और स्ट्रेचर भी साथ ही लाया था। समंदर खान को स्ट्रेचर पर डाल के वो लाली के साथ अंदर बढ़ गया। डॉक्टर्स फौरन ही उसे इमरजेंसी में ले गए, जबकि लाली के लाख कहने के बावजूद उसे साथ जाने की इजाज़त ना मिल सकी। वो खामोशी से आंसू बहाती बेंच पर आकर बैठ गई थी। शामिर ने कुछ देर वहीं खड़े उसे देखा और फिर आहिस्तगी से उसके सामने वाले बेंच पर बैठ गया। आपका नाम क्या है? उसने नरमी से पूछा तो लाली ने बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें, जिनमें इस वक्त मोटे मोटे आंसू जमा थे, हाथ की पुष्ट से साफ करते हुए कहा, गुलालई। वो हल्की सी आवाज में कहकर फिर से रोने में मशगूल हो गई। गुलालई यानी फूल की तरह हसीन। वो दिल में सोचकर मुस्कुरा पड़ा, लेकिन फिर खुद ही अपनी मुस्कुराहट पर लानत भेजी। अगर वो उसे मुस्कुराते देख लेती तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगता। कहाँ वो इतनी परेशान थी और वो मुस्कुरा रहा था। वो फौरन संजीदा हुआ। आप कहाँ रहती है और ये सब कैसे हुआ? उसने एक बार फिर लरसती पलकें उठाकर उसे देखा। शामिर के दिल की एक बिट मिस हुई थी। उसने फौरन नजरों का रुख बदल लिया। मैं यहीं पास ही गांव है बंगालई, वहां रहती हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। आज वापसी पे आते हुए रास्ते में देखा तो ये वहीं पे बेहोश पड़े थे। मुझे नहीं पता इन्हें क्या हुआ था। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर कोई था भी नहीं जो मदद कर सकता। उसने हिचकियों के दरमियान वक्फे वक्फे से गलगीर लहजे में बात मुकम्मल की।
شاہمیر نے تسلی سے اس کی بات سنی اور پھر اپنی جیکٹ کی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا جو اس نے تھام لیا۔ اس وقت اس نے ڈارک بلو چست جینز پہ وائٹ کالر شرٹ اور اس پہ براؤن جیکٹ پہن رکھی تھی اور اپنے چہرے پہ بلیک ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس وقت صرف اس کی حسین شہد رنگ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ آپ فکر نہیں کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو انفارم کرنا چاہتی ہیں تو کر دے۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نمبر یاد نہیں ہے۔ شاہمیر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کسی کا بھی نہیں ہے؟ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تو شاہمیر نے گہرا سانس کھینچا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ڈاکٹرز نکلے اور ایک ڈاکٹر ان کی طرف آیا۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ لوگ ہیں؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پہ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا جبکہ شاہمیر بھی اس کے ساتھ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ کے پیشنٹ سانس بند ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اچھا کیا انہیں وقت پہ لے آئے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ ان کے کچھ ٹیسٹ فوراً کروا لیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ انہیں کیا مسئلہ ہے۔ اب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔ آپ ملنا چاہیں تو وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ لالی نے تشکر بھرا سانس لیا۔ ابھی وہ سکون سے واپس بیٹھی ہی تھی جب پیچھے سے ایک نرس آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ اس نے شاہمیر سے پوچھا تو اس نے گلالئی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ان کی بیٹی ہے۔ نرس نے فوراً ایک لمبا چوڑا بل اور پرسکرپشن لالی کو تھما دی۔ یہ بل فوراً پے کر دے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، یہ بھی جلد از جلد کروا لے۔ نرس کہہ کر آگے چلی گئی جبکہ وہ پیچھے کھڑی کبھی بل کو دیکھتی تو کبھی ٹیسٹ کی لمبی چوڑی لسٹ کو۔ بل اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ اپنے گھر کا بچا کچا سامان بھی بیچ دیتی تب بھی ادا نہ کر پاتی۔ لائے یہ مجھے دے دے۔ شاہمیر نے بل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں بہت شکریہ، میں پے کر دوں گی۔ وہ بینچ پہ پڑا بیگ اٹھا کر اس میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی جیسے ابھی اس میں سے پیسے نکل آئیں گے۔ وہ پورا منہ بیگ میں دیے مستقل کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس میں کچھ تھا ہی نہیں تو ملتا کیسے؟ شاہمیر دونوں بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستگی سے اس کے ہاتھ سے بینچ پہ رکھا بل اور پرسکرپشن اٹھا کے بولا، میں یہ پے کر دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی یہ کافی زیادہ ہے، اتنا کیش تو ساتھ لے کر کوئی بھی نہیں گھومتا۔ میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، میں پے کر دوں گا۔ اور یہ ٹیسٹ کہاں سے کروانے ہیں یہ بھی پتہ کروا کے آتا ہوں۔ وہ نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا پلٹنے لگا جب لالی کی آواز پہ رک گیا۔ میں گھر جا کے آپ کو پیسے دے دوں گی۔ وہ کچھ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ جی ضرور، ویسے بھی میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، وقت آنے پر سود سمیت واپس لے لوں گا۔ آخری جملہ اس نے صرف دل میں سوچا تھا۔ اس کے جذبات میں سر ہلانے پر وہ پلٹ کر ریسپشن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واپس آیا تو گلالئی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے چل کر اس کے پاس آیا اور گلا کھنکھارا۔ وہ فوراً آنکھیں کھول کے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیسٹ کروانے کے لیے ٹائم لے آیا ہوں، صبح کا ٹائم ملا ہے، تب تک انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ میرے خیال سے آپ کو اب گھر جانا چاہیے، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کی شائستگی سے کہنے پہ گلالئی نے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن یہاں ابو کے ساتھ کون رہے گا؟ لگاتار رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ میری امی ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکتی۔ ایک بہن اور 2 بھائی ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں۔ میرے علاوہ فی الحال ایسا کوئی نہیں جو یہاں رک سکے۔ شاہمیر نے اس کی بات پہ اس بات میں سر ہلایا۔ اب تک اس کی باتوں اور حلیے سے وہ اس کے حالات کا اندازہ تو لگا ہی چکا تھا۔ اس وقت اس نے کھدر کا بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کا رنگ زیادہ دھلنے کے باعث پھیکا پڑ چکا تھا۔ پاؤں میں پرانی سی چپل پہن رکھی تھی اور خود کو اچھی طرح بڑی سی کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ یہ چادر بھی کافی پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ میں یہیں پر ہوں، آپ بے فکر رہیں، آپ کو گھر چھوڑ کر میں واپس یہیں آ جاؤں گا۔ کچھ دیر آرام کر لیجیے گا، پھر میں آپ کو واپس لے آؤں گا۔ اس نے رسانیت سے حل پیش کیا جو لالی کو بالکل بھی مناسب نہ لگا۔ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی میری اتنی زیادہ مدد کر دی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ چاہیں تو ابھی جا سکتے ہیں، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو سارے پیسے گھر پہنچتے ہی بھجوا دوں گی۔ آپ نے اتنی مدد کی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے نرمی سے کہا۔ وہ واقعی شاہمیر کی بہت شکر گزار تھی۔ جن حالات میں اس نے اس کی مدد کی تھی وہ اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں شاہمیر کو گلالئی کی یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اسے جانے کا کیوں کہہ رہی تھی اور اس کا رویہ بھی ایسے تھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ پھر خود ہی اپنی سوچ کی تصحیح کی، وہ اس کے لیے اجنبی ہی تو تھا۔
آخر کو یہ ان کی دوسری ملاقات تھی، اور پہلی ملاقات تو شاید بلکہ یقیناً وہ بھول چکی تھی، ورنہ اس وقت اتنے آرام سے نہ بیٹھی ہوتی۔ دیکھے گلالئی، آپ کو یہاں تک میں لایا ہوں تو کم از کم اس وقت آپ میری ذمہ داری ہے، اور میں آپ کو ایسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی آپ کے والد کو اکیلا چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میرا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ جب تک آپ کے والد صحت یاب ہو کر گھر نہیں چلے جاتے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ چاہے تو اسے میری مدد سمجھ لیں، ضد یا زبردستی، لیکن آپ کو اکیلا چھوڑنا نہ تو مجھے زیب دیتا ہے اور نہ ہی میری غیرت گوارا کرتی ہے۔ آخری جملہ اسے نہ جانے کیا سوچ کر بولا تھا۔ لالی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون تھا یہ شخص اور کیوں اس کی اتنی فکر کر رہا تھا؟ اسے بھلا اس سب سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا تھا؟ کہیں وہ اسے اکیلی سمجھ کر اس کا کوئی غلط استعمال تو نہیں کرنا چاہتا تھا؟ لالی ایک طرف اس کی شکر گزار تھی تو دوسری طرف اسے بہت سے خدشات بھی لاحق ہو رہے تھے۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو بے اختیار مسکرا پڑا۔ وہ اس کی ساری کیفیت سمجھ رہا تھا۔ گلالئی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اکیلی لڑکی کو موقع سمجھتے ہی یا ان کا کوئی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اس وقت میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے آپ کی مدد کرنا۔ مجھے غلط مت سمجھیے، میں اچھا آدمی ہوں۔ اس نے اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور نرمی سے اسے سمجھایا۔ لالی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں نظر آتی سچائی اور نرمی دیکھ کر اس کا دل کیا کہ اس شخص پہ اعتبار کر لے، اور پھر اس نے وہی کیا۔ وہ شاہ میر علی خان پہ اعتبار کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، کم از کم تب تک جب تک اس کے ابو ٹھیک نہ ہو جاتے۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نظر چرا لی۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ابو کے ٹھیک ہونے تک رہ سکتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، جتنے بھی پیسے آپ کے خرچ ہوئے ہیں وہ میں واپس کروں گی۔ اس نے ایک بار پھر اسی بات پہ زور دیا۔ جی جی ضرور، اس نے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ میرا خیال ہے آپ کو اب گھر چلنا چاہیے، گھر والے پریشان ہوں گے۔ یہاں پر میں نے نرس اور ڈاکٹرز کو تاکید کر دی ہے، وہ ان کا پورا خیال رکھیں گے، اور پرائیویٹ روم بھی ارینج کروا لیا ہے۔ اس کے کہنے پہ لالی نے دل ہی دل میں پھر سے پیسوں کا حساب شروع کر دیا۔ پرائیویٹ روم کے علاوہ ٹیسٹ اور دواؤں کے پیسے الگ تھے، اور ڈاکٹروں کی فیس تو اس نے ابھی شامل ہی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں سے شاہ میر کی آواز سے باہر آئی۔ میں نیچے پارکنگ میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے والد سے مل کر آ جائیں۔ ویسے ابھی بھی وہ نیم بے ہوشی میں ہے۔ اس کے عضبات میں سر ہلانے پر وہ اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی فرش کو گھورتی رہی، پھر گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دوسری طرف سفر اتنا بھی لمبا نہیں تھا، لیکن شاید وہ جان بوجھ کے اسے لمبا کر رہا تھا۔ ہاسپٹل سے اس کے گھر کا راستہ تقریباً 25 منٹ کا تھا، لیکن اب تک انہیں آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا، اور ابھی بھی کافی راستہ پڑا تھا۔ وہ گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا۔ آپ گاڑی تھوڑی تیز نہیں چلا سکتے؟ اس نے شائستگی سے سوال کیا، جس پہ شاہ میر کچھ خجل سا ہوا۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ وہ دراصل میں اس علاقے کا نہیں ہوں نا، میں لاہور سے آیا ہوں، تو ایسے راستے پہ گاڑی چلانا ذرا مشکل لگ رہا ہے، تبھی احتیاط کر رہا ہوں، فوراً بہانہ پیش کیا گیا۔ اچھا، وہ کہہ کر پھر خاموش ہو گئی۔ اب تک ان کا سارا سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ شاہ میر کا خیال تھا وہ اس سے اس کے بارے میں کچھ پوچھے گی، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ وہ بیچاری تو خود عجیب سی کیفیت میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب شاہ میر نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ خود ہی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اس کا ڈرائیور تو تھا نہیں جو وہ پیچھے بیٹھتی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شاہ میر نے کب سے دل میں اٹھتے سوال کو پوچھنے کی ہمت کی۔ جی؟ لالی نے اس کی طرف دیکھا جس کا پورا دھیان سڑک پہ تھا۔ آپ میریڈ ہے یا انگیجڈ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن بظاہر لہجہ عام سا تھا۔ لالی اس کی بات پہ حیران ہوئی، بھلا اس سوال کا کیا مقصد تھا؟ پھر خود ہی سوچ کے چپ ہو گئی کہ شاید اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس کے ایک لفظی جواب پہ شاہ میر کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اچھا، ایک اور بات پوچھوں؟ وہ کبھی بھی کسی سے اتنے سوال نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ تو پہلی بار تھا جب اس نے نازنین کے علاوہ کسی سے اتنی لمبی بات کی تھی۔ اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل کر رہا تھا گلالئی سے بات کرنے کو، پر وہ تو بالکل چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ جی پوچھے، آپ کہاں ٹیوشن پڑھاتی ہیں؟ اس دن دلاور نے اسے بتایا تھا کہ وہ انہی کی حویلی میں پڑھانے آتی تھی، تو پھر وہ کل رات کے وقت وہاں پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟
और अगर वो हवेली में पढ़ाती थी तो क्या वो उसे जानती थी या उसके बारे में कुछ सुन रखा था? मैं पहले यहीं पर एक हवेली में पढ़ाने जाती थी, फिर कुछ मसाइल की वजह से वो नौकरी छोड़नी पड़ गई, तो अब यतंगे के एक घर जाती हूँ, उसने मुख्तसर बताया। शाहमीर ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी मोड़ी। उसके लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। आगे वो सब कुछ खुद ही पता करवा लेगा। गुलालई के मामले में वो काफ़ी एहतियात कर रहा था। पाशा ने उसके पीछे आदमी लगाए हुए थे, और अगर पाशा को लाली के बारे में भनक भी पड़ जाती तो उसके लिए बहुत मसला हो जाता। पहले वो नाजनीन को लेकर परेशान था, अब मजीद परेशानी मोल नहीं ले सकता था। आपका घर कहाँ है? घर जरा आगे है, आप यहीं गाड़ी रोक दे, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। उसने नजर झुकाए कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। वो फौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और दूसरी तरफ से आकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो उसका शुक्रिया अदा करती नीचे उतरी और आगे को चल पड़ी। वो भी उसके साथ चलने लगा। आपको दोबारा लेने कब आना है? मेरा ख्याल है सुबह का वक्त सही रहेगा। वैसे भी अब काफ़ी देर हो चुकी है। उसने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा जो रात के 3 बजा रही थी। इस वक्त हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं। जी ठीक है। एक काम करें, आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं राब्ता कर सकूं अगर कोई मसला ना हो तो। उसके कहने पे लाली ने उसे अपना नंबर बताया, जो उसने फौरन नोट कर लिया। वो दोनों घर के सामने पहुंच चुके थे। पूरे घर की लाइटें जल रही थी और अंदर से शोर भी आ रहा था। वो समझ गई कि सब उसके लिए परेशान थे। अगर कोई मसला है तो मैं खुद आपकी वालदा से बात कर लेता हूँ ताकि वो परेशान ना हो। उसने घर की तरफ देखते हुए पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी उन्हें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो वाकई उसकी रहमदिली से बहुत मुतासिर हुई थी। क्या ऐसे लोग आज भी दुनिया में मौजूद थे? शायद हाँ। इसका सबूत उसके सामने खड़ा शख्स था जो बगैर किसी कर्ज के उसकी इतनी मदद कर रहा था। कोई बात नहीं गुलालई, बार बार शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। अब आप जाए, काफ़ी देर हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा। उसके आखिरी जुमले पे उसने चौंक के उसे देखा। अपना ख्याल रखिएगा, ये बात आज तक उसे किसी ने नहीं कही थी। वो तो हमेशा दूसरों का ख्याल रखा करती थी, अपना ख्याल रखना तो उसे आता ही नहीं था। खुदा हाफिज। सर झटक कर वो बैग से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसके जाने के बाद भी वो काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। फिर गहरा सांस हवा के सुपुर्द करके आसमान की तरफ देखा। तुम सही कहते थे पाशा, अल्लाह गुनहगारों पर भी मेहरबान होता है। वो अंदर दाखिल हुई तो मोरे के कमरे से उनके रोने की, गुल की तसल्लियां देने की आवाज़ें आ रही थी, जबकि दिलेर और दमेर कोने में अलग परेशान से बैठे थे। सबसे पहले उन्हीं ने उसे देखा और एकदम दोनों एक साथ आकर भागते हुए उससे लिपट गए। आप कहाँ चली गई थी आपी? हमने आपको इतना ढूंढा। कुछ नहीं हुआ, फिक्र नहीं करो, रास्ते में देर हो गई थी बस। वो उनके सर पे हाथ फेर कर कमरे की तरफ बढ़ गई जहां गुल और मोरे उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर दाखिल होकर मोरे के पास आकर बैठी। लाली, कहाँ चला गया था तुम? हमने तुमको इतना फोन किया, क्या हुआ था? तुम ठीक तो है? वो रोते हुए उससे गले लगाए पूछ रही थी। अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ, वहां से आते आते देर हो गई, वहां मौसम बहुत खराब था और रास्ता भी बंद था तो मुझे दूसरी तरफ से आना पड़ा। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से बता नहीं सकी। आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने तहम्मुल से समझाया तो सकीना बेगम के रोने में कुछ कमी आई। पीछे गुल खामोश खड़ी पुरसोच निगाहों से उसे देख रही थी। फिर भी बच्चे, इतना देर कैसे हो गया? वो अभी भी फिक्रमंद थी। अम्मी, यह तंगी यहाँ से दूर है, यहाँ पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ मौसम खराब था, रास्ते बंद हो गए थे तो मैं इंतजार के अलावा क्या कर सकती थी? अब देखिए, मैं आ गई हूँ ना, फिक्र नहीं करनी। वो काफी तक उन्हें तसल्लियां देती रही, तब जाकर वो कुछ पुरसुकून हुई। वैसे भी उन्हें गुलालई पर पूरा यकीन था, इस पे शक करने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारा बाबा भी इतने दिनों से घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, वो किस हाल में होगा। उनकी बात पे लाली ने मुठ्ठियां भीजी। उनके लिए परेशान ना हुआ करे मोरे, अल्लाह ऐसे लोगों को इतनी जल्दी आजमाइश में नहीं डालता, किसी न किसी तरीके से बचा ही लेता है। वो भी ठीक ही होंगे, उसने कुछ बेजार से लहजे में कहा। अच्छा, अब आप सो जाएं, मेरी वजह से इतनी परेशान हो गई। वो उन्हें बिस्तर पर लेटने में मदद करती, काफ़ी देर तक उनके सिरहाने बैठ रही, फिर उनकी और दलेर और दमेर के सोने के बाद उठी और अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे ही गुल भी आई और दरवाज़ा बंद करके अपने पलंग पे जाकर बैठ गई।
वो भी अपनी चादर उतार कर खूंटी पर लटका कर दुपट्टा ओढ़ने लगी। जब उसकी आवाज में चौंक कर पलटी। तुम झूठ बोल रही थी ना गुलालई? उसने जांचती नजरों से उसे देखते हुए पूछा। नहीं तो क्या मतलब? वो कुछ गड़बड़ा गई। मतलब ये कि तुम आज लेट की हुई थी। उसने गहरा सांस खींचा और उसके सामने आकर बैठ गई और शुरू से आखिर तक सारी बात उसके गोशगुजार कर दी। गुल तो बस हैरत से आंखें फाड़े उसे देखते जा रही थी। समंदर खान के बारे में सुनकर उसे थोड़ा दुख तो हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मोरे की तरह रोने बैठ जाती। उसने बस उनकी सेहतयाबी की दुआ की थी और फिर उसे उस अनजान शख्स की फिक्र ने आ घेरा जो लाली के लिए फरिश्ता बनकर आया था। उसका नाम क्या था? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। लाली उसकी बात पे सोच में पड़ गई। क्या उसने उसका नाम पूछा था? शायद नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो दिखता कैसा है। रास्ते में वो तो रास्ते में तो वो परेशान ही बहुत थी, तभी उसकी शक्ल पे गौर नहीं किया। और हॉस्पिटल पहुंचकर उसने मास्क लगा लिया था, लेकिन आखिर उसने अपना चेहरा क्यों छुपाया था? वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब गुल की नजरें खुद पे महसूस करके बोली। पता नहीं, मैं परेशानी में पूछना ही भूल गई। गुल ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो। तुम पागल तो नहीं हो लाली? एक बंदे ने आधी रात को तुम्हारी मदद की, तुम्हें एक बेहोश अब्बू समेत हॉस्पिटल तक लेकर गया, बिल पे किया, घर छोड़ के गया, और तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता? वो तकरीबन चिल्ला उठी। लाली ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। सुबह पूछ लूंगी। क्या मतलब? तुम वाकई सुबह उसके साथ जाने वाली हो? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बात वो लाली के मुंह से सुन रही है। हॉस्पिटल तक मैं पैदल नहीं जा सकती यार। यार लेकिन गुल, वो आदमी एतबार के काबिल है। शायद अल्लाह ने उसे हमारी मदद के लिए भेजा है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं अकेली सब कैसे करूंगी? इतना बड़ा बिल चंद घंटों में ही बना के दे दिया उन हॉस्पिटल वालों ने। अभी टेस्टों का रिजल्ट आएगा तो पता नहीं क्या निकलेगा। इस तरह तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पर्स में इस वक्त सिर्फ 500 रुपए थे। क्या करती मैं वहाँ? हाँ बताओ। वो फट पड़ी थी। गुल ने अफसरदगी से उसे देखा। यार फिर भी इतने सारे पैसे गैर आदमी से लेना कोई अकल वाला काम तो नहीं है। कल को अगर उसने कोई और मुतालबा कर दिया तो फिर? वो बहुत आगे का सोच रही थी और शायद ये ठीक भी था। बात की बाद में देखी जाएगी। फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास है इतने पैसे कि अब्बू का इलाज करवा सको? वो सख्त नजरों से घूरते हुए बोली। नहीं, लेकिन एक और ऐसा एतबार वाला आदमी है जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो हमारी मदद कर सके। उसने दूर किसी गैर मर्रे नुक्ते पे नजर जमाए कहा। तो लाली ने चौंक के उसे देखा। कौन? दिलावर अली खान। आ जाए, अपना ही घर समझे। दूसरी तरफ वो दरवाजा खोल के उसके लिए रास्ता छोड़कर खड़ा हो गया। वो भी अपनी बड़ी सी चादर संभालती अंदर दाखिल हुई और पूरे घर पर एक तायराना नजर दौड़ाई। दरवाजा खोलते ही सामने बड़ा सा लिविंग रूम था जिसमें दबीज कालीन बिछा था और लेदर के सोफे थे। एक तरफ किचन और लॉन में खुलने वाला शीशे का स्लाइडिंग डोर था और दूसरी तरफ शायद दो गेस्ट रूम्स थे। लिविंग रूम के आखिर में सीढ़ियां थी जो ऊपर जाती थी। अहियान उसे अपने पीछे आने का इशारा करते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। वो भी सुस्त कदम उठाती उसके पीछे चलने लगी। ऊपर एक लाइन में कमरों के दरवाजे थे जो इस वक्त बंद थे। यहीं से सीढ़ियां छत की तरफ भी जाती थी। यहाँ पर 3 कमरे थे। दरमियान वाले कमरे के पास पहुंचकर अहयान ने जेब से चाबी निकाल के दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वो भी उसके पीछे अंदर आ गई। हाँ जी, तो ये है हमारा कमरा। उसने दोनों बाजू फैलाकर उसे देखते हुए कहा। कैसा लगा? जब से नाजनीन से पहली मुलाकात हुई थी उसने उसकी पसंद और नापसंद जहन में नक्श कर ली थी और अपना कमरा उसके ऐन मुताबिक सेट किया था। तभी अब वो उसकी तारीफ का मुंतजिर था। नाज़नीन ने पूरे कमरे पे एक तायराना नजर डाली। वाकई यहाँ पर हर एक चीज उसकी पसंद के मुताबिक थी, लेकिन ये बात वो उसे हरगिज नहीं बताने वाली थी। क्या मतलब? कैसा लगा? कमरा है तो कमरे जैसा ही लगेगा ना? उसने बेपरवाही से कहा तो अहियान दांत पीस के रह गया। पता नहीं मैं आपसे क्यों अच्छे की उम्मीद रख लेता हूँ, उसने दांत कचकचाते हुए कहा। क्योंकि अच्छे लोगों से अच्छे की ही उम्मीद रखी जाती है, उसने गर्दन अकड़ा के कहा और बेड पे आके धपसे के बैठ गई। अयान बस उसे देख के रह गया, लेकिन वो भी उससे तारीफ करवा के ही छोड़ेगा। वो दिल में पक्का तय कर चुका था। कुछ सोचकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर गुम हो गया। नाज उसे चोर नजरों से देख रही थी। अंदर से खटपट की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो हाथ में ढेरों हैंगर्स और उन पे लटके सूट उठाकर बाहर आया और उसके ऐन सामने लाकर वो सब बेड पर फैला दिए। नाज़नीन मुंह खोले उन कपड़े को देखने लगी। वो दोबारा अंदर गया और मजीद कपड़े उठा लाया। महंगे से महंगे
ब्रांडेड घर में पहनने वाले कपड़ों से लेकर शादियों में पहनने वाले तक सब कपड़े उसके सामने पड़े थे, और सब के सब अपने बेहद बेहद कीमती होने का चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे। वो दिल में उसकी पसंद को सराहे बगैर ना रह सकी। वो उसके ऐन सामने सीने पे बाजू लपेटे फातिहाना नजर से उसे देख रहा था। अब तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, उसने दिल में सोचा। पता है गरीब अवाम पे सबसे ज्यादा जुल्म कौन करता है? उसकी आवाज पे अयान ने उसे चौंक के देखा, जो एक सूट पे हाथ फेरती खासी संजीदा लग रही थी। अब भला इस बात का क्या मतलब था? कौन? उसने दिलचस्पी से पूछा। नाज़नीन ने सामने पड़े कपड़ों पे नजर दौड़ाई, जो यकीनन बेहद महंगे थे। फिर वो मुश्किल अपनी हंसी छुपाकर संजीदा तासुरात के साथ उसकी आंखों में देखकर बोली, कसाई डॉक्टर। वो उसकी बात पे काफी देर अपनी जगह से हिल न सका। जब उसे उसकी बात का मतलब समझ आया तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करते हुए उसे अपने पीछे नाज का जानदार कहकहा सुनाई दिया। वो हल्का सा मुस्कुरा कर नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे से वो उन्हें कपड़ों में से एक ड्रेस निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। स्टोरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों को सुनकर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, और कहानी वाकई में पसंद आ रही है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।